specifically BBC, which has published a misleading article based on information and allegations without taking into consideration true and credible facts, while mentioning that AJK police stopped vehicles carrying food items. AJK police clarified in its earlier press release that no such hindrance is being posed to any transport coming into and going out of Azad Jammu and Kashmir territory. Therefore, it is clarified once again that the article by BBC Urdu was merely a baseless allegation in order to mislead people on the issue under its vested interest. ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हम पहले चीफ सेक्रेटरी साहब और मैंने 23 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में इस बात का जिक्र किया था कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रास्ते आज़ाद कश्मीर आने और जाने वाले खुले हैं सिवाय रावलाकोट के थोड़े से एरिए के। उसके बाद कहीं कहीं जो कालदम तंजीम के शरपसंद हैं उन्होंने वो रोड ब्लॉक करते हैं, वो इस तरह फूड आइटम्स की जो गाड़ियां हैं उनको लूटते हैं, उनके ड्राइवरों को मारते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं जो उनका क्रिएटेड जो एक ब्लॉकेड होता है उसकी वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में बीबीसी जैसे एक जो क्रेडिबल एक अदारा है उसको विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस or the government of Azad Jammu and Kashmir, although we have circulated and published the numbers which are always accessible for the people, and at the same time after every 1 hour we are giving the latest situation, road situation, along with numbers which are accessible and 24/7 available for the guidance and help of the people of Azad Jammu and Kashmir. Even with all these efforts, BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda, as you have already seen in that video. मैं आप तमाम अहबाब से, तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा, आप हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के एक्स अकाउंट है, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का वेरीफाइड ऑफिशियल पेज है, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए उससे रब्ता करें और उसको देखें, और हमने आपको नंबर भी आपने दिए हुए हैं, उन नंबरों पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जो किसी भी खबर को वेरीफाई करने के लिए फैक्ट चेक के ऊपर रेगुलर अपडेट होती रहती है कि कोई भी खबर जो सोशल मीडिया पे आई है ये सच्ची है या झूठी है, तो आप उसको भी एक्सेस करके देख सकते हैं कि वेदर इट इज़ फेक और इट इज़ रियल। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि पुलिस किसी जगह पे भी, यहाँ पे पुलिस सिर्फ लोगों की इज्जत जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए इंशाल्लाह नहीं है। हमारे नंबर मौजूद हैं, अगर किसी जगह पे भी कोई इस तरह कोई ऐसी चीज़ हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज एक्सेस अस। इसके साथ मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टिल टू डेट दे आर मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स टू कीप ऑल द रोड्स क्लियर or the areas blockade free and for the provision of all the essentials. But still अगर कहीं किसी को मुश्किलात का सामना होता है, वो हमारे गिवन नंबर्स पे रब्ता करें, दे विल बी गिवन ऑल आउट हेल्प इंशाल्लाह। इसके साथ मैं इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया को आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट that please, before airing any news item relating to Azad Jammu and Kashmir, verify any news related to AJK police from our official page and from our given number or from IG Azad Jammu and Kashmir's office. Please avoid airing unverified clips, edited videos or posts from anonymous social media accounts or AI generated posts. Please play a responsible role
in stopping the spread of misinformation that can disturb the public order. Azad Jammu and Kashmir Police is duty bound to serve and protect the people of Azad Kashmir. There is no ban, no restriction, and no harassment of any citizen carrying ration or food items. This fake news is an attempt to defame the institution and create unnecessary fear. We urge the public to rely only on official sources and report any such false content to us. Azad Jammu and Kashmir Police remains committed to transparency and public service. Citizens with any complaint or query can contact the police helpline, or they can contact to my office for any information they want. I once again request electronic media to help us correct this record by airing this clarification prominently so that the public is not misled and our image is not tarnished. Thank you very much. If you have any question, I'm here to answer. इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और डायरेक्टर जनरल प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी कोई भी ख़बर तस्दीक किए बगैर सच ना माने, गलत ख़बरों के ज़रिए इंतशार फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने BBC उर्दू के ख़बर का एक हवाला दिया, जो आर्टिकल उसमें छपा है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उस ख़बर में कोई भी सदाकत नहीं है, बल्कि जो बैरून मुल्क क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ इस तरह के इक़दाम करती हैं, आवाम किसी भी ख़बर को शेयर करने से पहले तस्दीक ज़रूर किया करें। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदी से मुतल्लिक BBC की ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं। शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी भी ख़बर की फैक्ट चेकिंग के ज़रिए तस्दीक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आने और जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। मसनूई ज़हानत के ज़रिए नए से नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। लियाकत अली मलिक ने कहा कि झूठी और जाली ख़बरें आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज हैं। आवाम किसी भी ख़बर को शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर करें। आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदिश से मुतल्लिक BBC की ख़बर दुरुस्त नहीं है।